Urmila Devi lives in Jitwarpur, a small village in India's northeastern state of Bihar, within a region called Mithila, which also includes parts of neighbouring Nepal. For centuries, Mithila has been renowned for its distinctive culture, history, language, and literature. Yet its rich traditions in visual art only began to be recognized in 1934, when a massive earthquake struck the region. In the course of inspecting the disaster, a British colonial official photographed murals he saw painted on interior walls of Mithila's houses that, due to traditional caste restrictions, had previously been inaccessible to outsiders. Ritually painted by women, these murals were considered auspicious means of blessing newlywed couples. In 1966 and 67, another calamity hit the region. This time, a terrible drought and famine. A government agency sent an artist to encourage Mithila's artistically talented women to generate much-needed income by applying their traditional mural imagery to sheets of paper, creating paintings to sell to urban ethnic art markets. The first women to paint on paper belonged to the upper echelons of Mithila society, members of its priestly Brahmin and clerical Kayastha families, who soon achieved national and international recognition for their art. Within a few years, their success inspired many other talented women, including those from families of lower social status. At the bottom of Hinduism's social hierarchy are numerous communities who have traditionally been marginalized, exploited, and generally subjected to harsh prejudice and abuse. For centuries, these outcast communities were restricted to work considered unclean and demeaning, such as sweeping roads and toilets, or handling human corpses and animal carcasses. They were regarded as achut, meaning untouchable. Although modern India has legally abolished the term and status of untouchability, these communities still struggle against ongoing oppression and violence. In an attempt at social reform, Mahatma Gandhi called them Harijans, meaning children of God. But more recently, they have come to call themselves Dalit, an ancient Sanskrit word meaning oppressed, a name they now proudly use to signal their spirit of defiance and struggle. Dalit culture and visual arts have yet to be widely recognized, either abroad or in India itself. The village of Jitwarpur is home to a small, vibrant Dalit community of artists. Their paintings are stylistically based on tattoo designs and other traditions. The imagery they depict is drawn from various sources, including pan-Indian Hindu mythology, their own community's heroic deities and legends, and scenes of daily life and festivals. Urmila Devi is one of Jitwarpur's leading contemporary Dalit artists. She has won various prizes for her work, which has been published and increasingly appreciated by museums and collectors. Her son and granddaughter have also become artists, thereby establishing an unusually direct three-generation lineage of painters in their community. To establish herself as an artist, Urmila Devi first had to face a number of barriers, including poverty, lack of education, a repressive husband, and various forms of social and cultural prejudice. This is her own account of that struggle in an interview she gave on the outskirts of Madhubani, the capital city of Mithila, 5 kilometers south of her village of Jitwarpur. जीवनी बताते हैं। पहले हम नाना हमको पहले बच्चे में हम लोग को शादी होता था तो लाठी लेकर के नाप करके तो बच्चे में शादी हो जाता 16 साल 18 साल के एज होता था तो गाना होता था तो गाना करके ससुराल जाते थे। ससुराल जाने लगा तकर बाद 2-3 साल के बाद से हमको बच्चा वो सरवन जन्म लिया तो 2 साल के था गोदी में तो भास्कर कुलकर्णी आया हमको गांव में गौरी मिश्रा आए तो वो सर्वे किया गांव में कौन पेंटिंग बनाते हैं दीवार पर मट्टी के बनाते हैं तो कागज़ पर बनाइए। भास्कर कुलकर्णी वो पन्ना पर पढ़ते हैं सो पन्ना 4 आना में आनन करके दो ठो सबको दिया सब बनाने लगा अपना अपना के सब बनाने लगा। हम भी सीखे लकड़ी से बनाते थे ऐसे कैसे दीवार में बनाते हैं मट्टी के ऐसे बनाते थे। हमको पति आया तो वो बोलता है क्या नहीं पेंटिंग नहीं बनाओ
आपको विदेश ले जाएगा, आप विदेशी, आप सुंदर है, आप नहीं पेंटिंग बनाओ, नहीं बनाने देंगे। हम पेंटिंग नहीं बनाया, चले गए ससुराल। ससुराल गए, हमको तकलीफ़ बहुत होने लगा, लड़का बच्चा होने लगा, 4 ठो बेटा हुआ। एक बेटा दवा बगैर मर गया, 5 साल को बच्चा, बहुत तकलीफ़ हुआ। घर नहीं था, अंगने में वो धान होता है ना, जानते हैं, वो धान के बिचाली अंगने में ओछा ओछा करके और वो चटाई ओढ़ा करके बच्चे लोग के अंगना में सुताते थे। बहुत तकलीफ़ होता था। और इसको बाबा पिताजी बहुत पीते थे, बहुत बदमाशी करते थे। हम क्या इस गांव में आए, हमको नानी के गांव है, माँ के नैहर है, ये गांव में आया। पेंटिंग हम फिर बनाने लगे, पेंटिंग फिर बनाने लगा तो वो क्या वो पेंटिंग के फाड़ देता था, पेंटिंग को तालाब में फेंक देता था। बच्चे लोग के पढ़ाते थे तो वो किताब सब चूल्हा में दे करके जला देता था, नहीं पढ़ने देंगे, आपको पेंटिंग नहीं करने देंगे। क्यों करते हैं? फिर क्या हम नर्स को ट्रेनिंग किया गौरी मिश्रा के साथ। हमको सब आते हैं, घाव ताव चीर फाड़, पेट में से बच्चा निकलना, सब ठो हम कर देते थे। गौरी मिश्रा हमको रख लिया। वो बोला हम आपको नौकरी सरकारी दे देते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं? कहले नहीं, आप इंग्लिश सीखो, पढ़ो। हमको पढ़ाने लगा गौरी मिश्रा। हमको पति ने क्या जा कर के हमको वहाँ पर बहुत झगड़ने लगा। आप कुर्सी पर बैठिएगा, हम रिक्शा चलाएंगे, हम कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। हमको बहुत बुरा लगा, हम छोड़ दिया। कनते कनते घर गया। फिर वो पेंटिंग हम बनाने लगे। फिर पेंटिंग बनाने लगी तो क्या वो फाड़ देता था, फिर फाड़ देता था। तो खर्चा के बहुत तकलीफ़ होता था। 4 दिन धियापुता को अन्न बेगर हो जाता था। और बच्चा लोग सब बोलता था मम्मी खाना बने है, मम्मी खाना बना है। तो नहीं बना है। हम सोते हैं चौकी पर, सब आ कर के 1 बजे लंच में मम्मी खाना बने, आँख से आंसू जाता था। खाना नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे? आपको पिताजी दारू तारी पी लेता है, हमको से झगड़ता है, हम कहाँ से खाना देंगे? तब से ये गांव है, शांति के घर है लहरियागंज, उस बगल में मारर गांव है। मारर गांव में हम मांगने चला गए। सीता देवी यहाँ से इलाहाबाद के अफसर गए। वो सोचा, वो मांगा सीता देवी को, देखो सीता देवी हरिजन पेंटिंग कौन अच्छा बनाता है? तो सीता देवी ने बताया हाँ उर्मिला देवी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है। वो पोता के भेजा से जाओ उर्मिला देवी के बोलो से पेंटिंग है या नहीं है। इलाहाबाद के अफसर वो जेपी रहा था डायरेक्टर, तो 4 ठो पेंटिंग हमको ले गया। पहले सस्ता था, वो सरवन के हम भेजा, सरवन जाओ सीता देवी यहाँ कोई अफसर आया है, पेंटिंग उधारे लेगा तो उधारो दे देना बेटा, पैसा नहीं देना तब भी दे देना। तो कैसे देगी मम्मी? तो 4 पेंटिंग है, 400 में तुम दे देना। पहले सस्ता था तो इस धारे पेंटिंग पैसा नहीं दिया, उधारे पेंटिंग वो ले गया, जैन साहब ले गया। तो दिल्ली ले गया राष्ट्रपति प्रोग्राम में। राष्ट्रपति प्रोग्राम 4 दिन के मेला लगता है, वो दिल्ली में ले गया। 4 पेंटिंग बिक गया, अखबार में निकल गया, किताब छपा गई। और इस बेर से पेंटिंग हम बनाने लगा और पेंटिंग के पैसा किताब सब ले कर के आया। सीता देवी यहाँ, उर्मिला देवी के घर कहाँ है बतलाओ? वो सीता देवी ने बतला दिया। इसको पोता के संग करके हमको यहाँ आया। तो उर्मिला देवी और पेंटिंग अब बनाओ, अब आपको नाम पूरा इंडिया में फैला गया। आप पेंटिंग बना करके रखो, आपको पेंटिंग बिकेगा और आपको हम से प्रदर्शनी में देंगे, भेजेंगे जहाँ तहाँ। उस बार से हम पेंटिंग बनाने लगा और इस बार से हमको पति नहीं कुछ बोला। और जहाँ जहाँ भेजता था सरकार, चिट्ठी देता था, तहाँ तहाँ साथे जाता था। तो उर्मिला देवी एक गाना गाओ। हम बोले हम नहीं आता है सर। तो नहीं गोदना कैसे गोदता है?
कैसे गोदना के गीत होता है। तब से बताओ उर्मिला देवी गोदना आपको बहुत मशहूर है। वो लाइन पेंटिंग, वो मिथिला पेंटिंग तब बनाते हैं, वो गोदना आप बनाइए। मिथिला में सब बनाते हैं, गोदना में कम लोग बनाता है, इतने नहीं जानता है। आप बहुत जानते हैं, आप गोदना बनाओ और गोदना के आप गीत कहिए। तब हम एक ठो गाना गा करके सुना दिया, वो नटिन वाला जो गोदना गोदती रहते हैं और गाते रहते हैं, से गाना सुना दिया। और हम ससुराल जाते थे पाँव पैदल। वो एक गांव है तिलकबाड़ में, तो एक गांव में एक ग्वालिन को बहुत गोदना था, ये पूरा गोदना था, ये पूरा गोदना यहाँ से इच्छू से गोदना। तो बोलता है क्या बेटी पानी पिएगी? तो नहीं माँ जी पानी नहीं पिएगी, एक चीज़ बतला दो ना हमरा। तो क्या? कहले गोदना पूरा बतला दो ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो देखो देखो पूरा गोदना है, तो क्या चीज़ है, ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ। वो सब ठो बता दिया, हम नज़र में मन में रख लिया, आ करके पेंटिंग पर हम उतार लिया। बहुत फर्क है, पहले डिबिया को स्याही से रंग बनाते थे, शुरू में नटिन से सिखाया सुइया ले करके, तो लकड़ी से हम बनाते थे, और लकड़ी से वो सलाई के तिल्ली से बनाते थे, सलाई के तिल्ली से होते 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 तब पेन से बनाने लगे, और पेन छोड़ दिया, अब हम ब्रश से बना। हाँ, समय समय पर बदला था। जैसा अब देखिए आप खरीदते हैं तो आप चॉइस करेगा, वो लाइन पेंटिंग ये जैसे है, मोट है, ये मोट है तो वो मोटा है, वो पेंटिंग नहीं लेंगे। वो अच्छा है, लाइनिंग अच्छा है, हम ये पेंटिंग लेंगे। तो वो अच्छा जो लगता है ये फिर पेंटिंग बनाने लगता है। ये जो लकड़ी से होता है सो मोटा होता है, और पेन से होता है तो मेही होता है। सब अपन देवी देवता के अपना मन से, और विदेशी सब हमको गांव में पहुँचे लगा तो बोला क्या से जैसे रामायण बनता है, बड़का लोग बनाते हैं रामायण, तैसे आप लोग गोदना में राजा सलहेश के पूरा स्टोरी बनाई। तो पूरा स्टोरी राजा सलहेश के बनाने लगा गोदना। राजा सलहेश के हमको कोई नहीं बताया, हमको पति नाच खेलता था, तो इसको पूछा कैसे कैसे आप नाच खेला राजा सलहेश को बताओ, तो वो बताते रहते हैं, हम लिखते रहते हैं। बीच में राजा सलहेश और एक तोता, राजा सलहेश के फुलबाड़ी में तोता बहुत रहते हैं, और ये मालिन रास करते हैं, कुसुमा रेशमा सब बहन मिल करके राजा सलहेश के ये रास करते हैं। ये भी मोर है, ये भी तोता सब है। फुलबाड़ी बहुत, राजा सलहेश के फुलबाड़ी बहुत रहता है, बीच में मंदिर रहता है, चिड़ै चुनमुनी बहुत रहता है। तो राजा सलहेश के घर है राज पकड़िया, राज में चौथा में घर है, नेपाल में घर है। ससुराल है बलाटपुर, कन्नी है बलाटपुर से हम नहीं जानते हैं। वो देवते हैं, देवी देवता है, हमारे लोग को देवता है। छोटे बनाते हैं, अपना मन में रखते हैं भगवान के ऐसा शकल देना चाहिए, ऐसा शकल नहीं देना है, शकल बदल करके से शकल बनाते हैं। सोच सोच करके सबटा बना देते हैं, सब ठो कहानी बना देते हैं। क्यों? बहुत आसानी से बनता है, बनाते हैं, बनाने में कोई अफरद नहीं है। हम अपना मन से देते थे, सोच सोच के क्या बनाओ नहीं बनाओ, क्या हाथ में रहता है नहीं रहता है, अपना मन से हम किसको पूछते नहीं हैं। और पूछेगा बना और कुछ अल्टर बता देंगे तो नहीं होगा, पेंटिंग खराब हो जाएगा। तो सोच सोच करके बनाते हैं। छठ के, हाँ छठ के सूर्य भगवान की पूजा होता है, यहाँ पर खरना होता है, खरना के सामान सब किन करके सब खरना के बनाते हैं। और तालाब में पूजा होता है, सब ठो हाथ उठाता है, और ये सब ठो हाथी घोड़ा घैला कसिया सूप केरा तेरा सब ठो, केरा के घोर सब रखा हुआ है सब ठो, और सूर्य भगवान को हाथ उठाता है सब अर्घ दे करके। सब क्या होता था क्या हो गया, अब क्या हो गया, हम मांग कर चाक करके खाते थे, अभी हम प्लेन पर घूमते हैं, बहुत खुश हैं। खुश कैसे नहीं होगा, समय समय के परिवर्तन बदलता है।
बच्चे लोग क्या था नहीं था, अब क्या हो गया।